ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 8 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ YouTube 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਭਰਮਾ ਹੰਗੂਰਾ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਜੋ ਕਿ ICCRC ਬੇਸਡ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਹੈਰਾਨ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 5.5 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਔਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। +2 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ BA ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, MPhil ਕੀਤੀ ਹੈ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੀਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਆਮ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਮਬੈਸੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ। देखिए रणवीर जी, हम हर शो में ये मैसेज हमेशा देते हैं कि जो भी स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवाना चाहते हैं वो काइंडली ICCRC मेंबर को ही अप्रोच करें। और ये मैसेज देने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि जो ICCRC मेंबर है वो एक एक्सपर्ट, एक एजुकेटेड कैंडिडेट है जो आपकी एप्लीकेशन में किसी भी तरीके की कोई शॉर्टकमिंग नहीं रखेगा, उसको बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करके कंपाइल करके एम्बेसी में रिप्रेजेंट करेगा। और एक चीज़ ये भी मैं कह सकती हूँ कि जो लोग ICCRC मेंबर नहीं हैं या जो प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं या सिंपली सुनी सुनाई बातों पे प्रोसेस करते हैं, वो कभी भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो है वो नहीं दिलवा सकते। क्योंकि जिस कैंडिडेट ने एक प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं लिया इमिग्रेशन का, या जिसको पता ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं या किसी भी डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन में कंपाइल किया जाता है, वो हमेशा ही रिस्की रहेगा। अब जो आपने क्वेश्चन पुट किया है कि गुड प्रोफाइल्स जो हैं, हमने अभी पिछले कुछ टाइम में बहुत ही अच्छे प्रोफाइल्स ऐसे फेस किए हैं जो टोटली मिस गाइडेंस की वजह से, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो हैं वो रेफ्यूज़ हुए हैं। एक रिसेंट केस ही मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये 2-3 दिन पहले का ही केस है जो हमें अप्रोच किया था स्टूडेंट ने, शायद वो अम्बाला से वो एक लड़की थी जो बहुत अच्छे प्रोफाइल वाली लड़की थी। ग्रेजुएशन उसने किया हुआ था, BA किया हुआ था, उसके बाद उसने MA इंग्लिश किया था। 6.5 ओवरऑल उसके बैंड्स थे, एक में और 6 एंड ईच वाला कॉम्बिनेशन SDS कैटेगरी में वो क्वालिफाई कर रही थी। सो प्रॉब्लम कैंडिडेट की ये थी, या उसने उस लड़की को इस तरीके से कन्विंस किया कि उसने जहाँ से IELTS किया, जिस इंस्टीट्यूशन से उसने IELTS किया, जो भी उसके टीचर्स थे, उन टीचर्स ने ही उस बच्चे को कन्विंस करके उसका एप्लीकेशन जो है वो कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा के, ये अक्सर हो रहा है पंजाब, बच्चा जिथे पढ़ता है उत्थे एप्लीकेशन दे देता है। जी हाँ जी। सो एज अ रिजल्ट जब हमने उसका जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव नहीं रहा। मतलब आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज जब वो कैंडिडेट मेरे सामने बैठा था कि 6.5 बैंड्स वाली लड़की है, अच्छे प्रोफाइल वाली लड़की है, MA इंग्लिश उसका जो है वो एजुकेशन है, रीसेंट कोई गैप नहीं है, उसके बावजूद भी जो उसकी एप्लीकेशन को है वो एक रिफ्यूज़ल लेके उसके हाथ में दे दिया गया। सो
ऐसा हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, और ये वजह ये है कि जो स्टूडेंट किसी की भी बातों से कन्विंस हो जाता है, मतलब स्टूडेंट, हम रेगुलर बेसिस पे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप एक ICCRC मेंबर को कांटेक्ट करो। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा आपको हाँ में आपको आंसर दे रहा है, या मे बी आपको कोटेशन बहुत ही इम्प्रेसिव दे रहा है, या आपको किसी भी तरीके के कोई ऑफर्स दे रहा है, आप उस पर कन्विंस हो जाएं, या पैकेजेस बना के उसमें आपकी टिकट भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, इस तरीके के जो ऑफर्स आपको दिए जाते हैं उस पर स्टूडेंट को बिल्कुल भी रिलाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल उस चीज़ से कन्विंस नहीं होना चाहिए। रादर मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं आज की डेट में। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि स्टूडेंट्स आज इंटरनेट फ्रेंडली हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो इतनी सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च करना जो है वो वाइज है। ज़रूर स्टूडेंट को किसी भी कंसल्टेंट को अप्रोच करने से पहले एक अपने ग्राउंड पे जो है वो रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए कि आप किस ग्राउंड पे अपना जो है वो स्टूडेंट वीज़ा लगा सकते हैं, एप्लीकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली इंटरनेट पे गूगल करेंगे तो आपको हर चीज़ का सैंपल मिलेगा, आपको हर चीज़ की चेकलिस्ट मिलेगी, एवरीथिंग इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। तो आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप अपना करियर किसी भी के हाथ में इस तरीके से नहीं देना चाहिए। और जब आप किसी ICCRC मेंबर को अप्रोच नहीं करते, या किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू उसकी बातों में आके कन्विंस होकर आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा नॉलेजेबल है, ज़रूरी नहीं है कि उसे पता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में भी स्टूडेंट को CA रिपोर्ट के लिए कह दिया जाता है कि आप CA रिपोर्ट बना के लेके आओ, या आप फंड्स शो करो, या आप अपनी SOPs लिखो। इस तरीके के एडवाइस स्टूडेंट को नॉर्मली दिए जाते हैं एक मैक्सिमम लेवल पे। सो ये चीज़ें अगर हम देखें तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, बिकॉज हाई कमीशन का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही सिंपल स्लीक रिक्वायरमेंट है कि आप 1 साल की ट्यूशन फीस पे करो, या आप अपना GIC पे करो, जो भी SDS नॉन SDS के कंडीशंस हैं वो फुलफिल करो, और आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ। जब एक अनएक्सपर्ट कैंडिडेट आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, ऑब्वियसली वो आपकी एप्लीकेशन को इतना बल्कि कर देगा, उसमें इतने सारे पेपर्स वो इनक्लोज कर देगा कि उनको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड भी किया जाता है तो कंप्रेस करके वो फाइल साइज बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंप्रेस कर छोटा हो जाता है, छोटा रीडेबल नहीं रहता, जिसकी वजह से इमिग्रेशन के सामने जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं प्रेजेंट हो पाती, और एज अ रिजल्ट रिफ्यूजल्स आते हैं। और एक और चीज़ हम नॉर्मली देखते हैं, स्टूडेंट, मैं फिर से ये मैसेज दूंगी कि स्टूडेंट का खुद के लेवल पे स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप इंडिया में एजुकेशन लेते हो, आप IELTS भी करते हो, आप फीस भी पे करते हो, और फिर आप किसी एक नॉर्मल कैंडिडेट के से कन्विंस हो के आप अपनी एजुकेशन प्रोफाइल को हाइड कर देते हो। ये नॉर्मली ये देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, तो सिंपली उनको ये कह दिया जाता है कि ये प्रोग्राम है इस कॉलेज में, किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर उनको वो ऑफर दिया जाता है तो आप अपनी मास्टर डिग्री हाइड कर दो, या आप ग्रेजुएशन हाइड कर दो, या गैप में आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज करके लगवा दो। मैक्सिमम चीज़ एक और हम लोगों ने ये जज की है कि पंजाब में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बिना किसी एफिलिएशन के लोकल काउंसिल्स के ग्राउंड पे अपने इंस्टीट्यूशंस को रन कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप किसी भी ऐसे लोकल काउंसिल से या लोकल इंस्टीट्यूशन से अपने गैप कवरिंग डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं अरेंज करो, क्योंकि वो वेरीफाइबल नहीं है। आपसे ज़रूर उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे 20, 30, 40, 50 जितना भी कोटेशन आपको दिया जाता है, 40-50 हज़ार रुपये लेके आपका वो एक गैप कवरिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर अरेंज करवा दिया जाता है। लेकिन ये जितने भी लोकल काउंसिल्स हैं वो कभी भी आपको सक्सेसफुली वीज़ा के लिए हेल्प नहीं कर सकते। दीज आर द लोकल काउंसिल्स आई वुड से, वो एक एफिलिएटेड रजिस्टर्ड काउंसिल्स नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हम पंजाब में देखते हैं, स्टूडेंट्स मैकेनिकल के या प्लम्बिंग के या कारपेंटर के इस तरीके के ट्रेड सर्टिफिकेट अरेंज करते हैं, लेकिन दीज सर्टिफिकेट्स आर नेवर हेल्पिंग। सो जो भी आपका जेन्युइन प्रोफाइल है, अगर आप मास्टर डिग्री आपने किया है या ग्रेजुएशन किया है, आप उसको जेन्युइनली अपने प्रोफाइल में ऐड करवाइए। एक और चीज़, बीइंग एन ICCRC मेंबर, मैं ज़रूर मैसेज करूँगी कि जो आपकी इंडियन एजुकेशन है, जब आप कनाडा पहुँच जाते हो, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हो, जब आप अपनी PR के लिए अप्लाई करते हो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर, तो आपको
इंडियन एजुकेशन के पॉइंट्स भी मिलते हैं जी। सो दिस इज़ नेवर एडवाइजेबल कि आप अपनी बैचलर को हाइड कर लो या आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को हाइड कर लो, क्योंकि जब आप PR के लिए अप्लाई करेंगे कनाडा पहुंच के, सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिस ग्राउंड पे आप अपने पॉइंट्स गेन करोगे। आपकी इंडियन एजुकेशन के भी पॉइंट्स हैं, आपके इंडियन एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स हैं, आप जो कैनेडियन एजुकेशन लोगे उसके भी पॉइंट्स हैं, आपकी जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स हैं। सो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है कि आप अपनी इंडियन बैचलर और मास्टर डिग्री को जो है वो आप हाइड करो। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जो एक ग्रेड 12 स्टूडेंट कनाडा जाता है और जब वो PR के लिए अप्लाई करता है, या जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जाता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि जब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के जब पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे PR के लिए जी, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर, सो ऑब्वियसली उसके एजुकेशन के पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी चाहे इंडियन है, चाहे इंडियन एजुकेशन है। सो उस चीज़ के भी पॉइंट्स वो वहाँ पे क्लेम करेगा। सो ये एक बहुत ही ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें जितने भी स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, आप कभी भी अपनी इंडियन एजुकेशन को हाइड नहीं करो। बहुत अच्छे तरीके हैं आपका जो भी प्रोफाइल है उसको एक्सप्रेस करने को, उसको अच्छी तरीके से दिखाने में आपकी एप्लीकेशन में, लेकिन फिर से वही बात है कि आप किसी एक्सपर्ट एडवाइस को अप्रोच करें, क्योंकि मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि जो लोग ICCRC मेंबर नहीं हैं वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सर्विसेज नहीं दे सकते हैं। सो नॉर्मली रिजल्ट आपके सामने यही आएगा कि मिस गाइडेंस, मिस रिप्रेजेंटेशन से आपके अच्छे प्रोफाइल्स जो हैं वो रिफ्यूज़ हों। Hi, I'm Arushi Sharma. You're watching international program Desh Pardesh Live. Subscribe the YouTube channel. ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼। ਮੋٹے ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਤਾਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜੇ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਉਨੇ ਕੁ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਨਲਾਈਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਨਵਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ? रणवीर जी, फैमिली क्लास का जो एप्लीकेशन है वो 28 जनवरी से कनाडा इमिग्रेशन जो है वो एंटरटेन करने वाला है। और इसमें एक और चीज़ है, जैसे कि हम रेगुलर ये चीज़ अनाउंस करते हैं कि इस बार का जो कोटा है वो 20,000 एप्लीकेशंस का है। और जैसा ये मैसेज था मार्केट में कि शायद ये एक लॉटरी सिस्टम है, सो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट अ लॉटरी, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे ये प्रोग्राम इस बार प्रोसेस होने वाला है। सो जो लोग अभी रह गए हैं, अप्रोच किसी वजह से नहीं कर पाए हैं हमें, वो काइंडली हरी अप होके हमें अप्रोच करें ताकि 28 तारीख को आपकी एप्लीकेशन डेस्क पे रेडी हो। मैम 28 ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ 28 ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੋਕ? देखिए ऐसा है रणवीर जी, जब एक फैमिली क्लास एप्लीकेशन हमें कंपाइल करनी है, मैं बहुत बार कहती हूँ कि परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट। जब हम एक PR एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं बहुत टाइम लगता है उसके डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक फॉर्मेट है, एक रिक्वायरमेंट है, एक कैलकुलेशन है। सो जो ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फैमिली स्पॉन्सरशिप क्लास जो स्टार्ट हो रही है 28 जनवरी को, इसमें मेन जो एक चैप्टर है वो स्पॉन्सर का है, जिसने कनाडा से अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना है। क्योंकि ये एप्लीकेशन में जो कैनेडियन सिटीज़न परमानेंट रेजिडेंट बच्चे हैं वो इंडिविजुअली जो हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए अपने पेरेंट्स को अप्लाई करने के लिए। और सबसे बड़ा जो इस चीज़ में फैक्टर कैलकुलेट होता है वो उनकी इनकम का, उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। सो उसके लिए कांस्टेंट लेवल पे उनके लास्ट 2-3 इयर्स के जो टैक्स पेपर्स हैं, जो उनकी इनकम है वो देखी जाती है। सो ये
इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसे आप 1 या 2 घंटे में सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एप्लीकेशन को रेडी नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम बार बार ये मैसेज कर रहे हैं कि आप इन एडवांस हमें अप्रोच करें, ताकि आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो 1 गो में कंपाइल करके रेडी रखी जाए, ताकि जिस भी टाइम 28 जनवरी को ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होता है, इमीडिएटली आपकी एप्लीकेशन जो है वो अपलोड की जाए, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड है। सो ऐसी कोटा कितना मेरे ख्याल कितने 20,000 हाँ जी 20,000 एप्लीकेशंस उन्होंने इस बार एंटरटेन करनी है। और ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है कि जिसमें वो n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लेके उसमें से 20,000 को शॉर्टलिस्ट करेंगे। इट्स एन इंडेक्स सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस टाइम उनको लगा कि 20,000 एप्लीकेशंस पूरे हो गए हैं, वो एप्लीकेशंस लेने बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली। सो बेटर यही होगा कि जो विलिंग हैं, जो प्रिपेयरिंग हैं, वो हमें अप्रोच करें, ताकि 28 तारीख तक आपका एक कंप्लीट सेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो रेडी रखा जाए। और 28 तारीख अपलोड करनी है। हाँ जी 28 को ही पोर्टल जो है वो ओपन होगा, सो ताकि वो इमीडिएटली जो है वो अपलोड किए जाए। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਉਧਰ ਨੇ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ, ਮਾਪਿਓ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਉਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਪਾਂਸਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਪਲੋਡਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਸੀਮਾ ਬਿਆਨਾ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੀਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਓਪਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੀਟਸ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? रणवीर जी, वैसे तो मेन इनटेक जो है वो ऑलरेडी फुल है, लेकिन जैसे हम पहले भी मैसेज देते हैं कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कॉलेजेस में अच्छे प्रोग्राम्स के लिए जो हैं वो प्रोग्राम्स ओपन होते हैं फिर से। आज पर्टिकुलरली जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ ये कॉनेस्टोगा कॉलेज का है, विच इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस ऑफ ओंटारियो। बहुत ही बड़ा कॉलेज है, काफ़ी सारे स्ट्रीम्स को वो जो है वो रन करता है। अराउंड 250 कोर्सेज को कॉनेस्टोगा कॉलेज जो है वो रन करता है, और गवर्नमेंट कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फैसिलिटी के साथ है। सो इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए मई 2019 के लिए 2-3 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स किसी वजह से एडमिशन नहीं ले पाए हैं या जो सितंबर के लिए भी प्रोसेस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो इन प्रोग्राम्स को ज़रूर टारगेट कर सकते हैं। सो इसमें से एक प्रोग्राम तो जो मैं कहूँगी वो पर्टिकुलरली नर्सेज़ के लिए है, चाहे वो GNM नर्सेज़ हैं या BSc नर्सिंग जिन लोगों ने की हुई है स्टूडेंट। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है एनहांस्ड प्रैक्टिस क्रिटिकल केयर नर्सिंग का। दिस इज़ पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशलाइज्ड कोर्स है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 6.5 बैंड्स ओवरऑल 6 इन ईच का रिक्वायरमेंट है, और मई 2019 के लिए ये PG प्रोग्राम ओपन है। जो भी GNM नर्सेज़ हैं या BSc नर्सेज़ हैं जो टारगेट करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, काइंडली अप्रोच करें। इसके अलावा एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट 2 years पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मई इनटेक इज़ ओपन अगेन। और इसके अलावा IT बिजनेस एनालिसिस का जो एक प्रोग्राम है 2 years का PG, ये प्रोग्राम भी ओपन है। सो इन दोनों प्रोग्राम के लिए एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट एंड IT बिजनेस एनालिसिस के लिए हम लोगों को जो स्टूडेंट्स अप्रोच करें वो काइंडली अपने बैकग्राउंड में BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या BTech IT किया हो या BCA किया हो, BSc IT किया हो, ये स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगे 6.5 बैंड 6 इन ईच के साथ। देयर इज़ वन मोर प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, डिप्लोमा इन बिजनेस 2 years कॉनेस्टोगा कॉलेज। सो मई के लिए ये 3-4 प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन हैं। सो स्टूडेंट्स ज़रूर इमीडिएटली हमें अप्रोच करें। एंड आई वुड से कि कॉनेस्टोगा के जो ऑफ़र्स हैं वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, और क्योंकि ये मई 2019 के लिए है तो वी होप कि 2 weeks 3 weeks मैक्सिमम इसी टाइम के अंदर उनके जो हैं वो ऑफर्स भी आ जाएंगे जी। एंड एडिशनली 1-2 चीज़ें मुझे और कहनी है कि सितंबर 2019 के लिए भी यॉर्क यूनिवर्सिटी जो है ओंटारियो के अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ओपन हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि ये यूनिवर्सिटी 6 इन ईच के साथ आपको एंटरटेन कर रही है। इनफैक्ट अगर आपके किसी 2 मॉड्यूल्स में 5.5 भी हैं तो वो एंटरटेन कर रहे हैं। सिर्फ कंसंट्रेशन आपको ये रखनी है कि आपके राइटिंग एंड स्पीकिंग में जो है वो 6 होने चाहिए। बाकी 2 मॉड्यूल्स में अगर आपके 5.5 भी हैं
तब भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। एंड द टारगेट एरियाज आर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन बिजनेस, इन HR, इन फाइनेंस एंड कंप्यूटर्स ऑल्सो। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। सो काइंडली जो भी स्टूडेंट्स विलिंग हैं, काफ़ी बड़ा लॉट है जो अभी प्रिपेयरिंग हैं और कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, सो इन जो प्रोग्राम्स हैं इनका बेनिफिट ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਸਕਦੇ हैं। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿट्स ਕੀ होंगे? देखिए रणवीर जी, बायोमेट्रिक्स जो है जो वो अभी तक ये इस तरीके का प्रोग्राम है जो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर भी ये मैसेज दूंगी कि जो भी कंसल्टेंट है या जो भी एजेंट है, ये उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कस्टमर को पूरी तरीके से ट्रेन करके भेजे जब भी कस्टमर ने VFS अप्रोच करना है अपने फिंगरप्रिंट्स के लिए। सो कस्टमर भी काइंडली अपने कंसल्टेंट को बैठ के उसके सामने पूरा प्रोसीजर अंडरस्टैंड करे कि उसको किस तरीके से VFS जाना है, या उसकी अपॉइंटमेंट क्या है, उसको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी जो बायोमेट्रिक है इसमें 14 ईयर्स से जो नीचे, 14 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनका भी बायोमेट्रिक स्टैंड नहीं करता, और जो 79 ईयर्स से जो एज्ड हैं लोग वो भी बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। इसके बीच वाला जो ग्रुप है उसका सभी का बायोमेट्रिक्स होगा, और पर्सनली हर कैंडिडेट को जो है वो VFS ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ के लिए। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कि तुसी सानू फिंगर भेजो जी, नहीं, एम्बेसी ने कोई भी आपको किसी तरीके का कोई लेटर नहीं देना है। जब आपकी फ़ीस पे हो गई, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है या मैनुअल एप्लीकेशन है, ये इंडिविजुअली कंसल्टेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी अपॉइंटमेंट बुक करके उसका इंस्ट्रक्शन लेटर जो है जिस पे आपका डेट, आपका टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो मेंशन है, वो लेके कैंडिडेट को वो दे, ताकि कैंडिडेट जाके सक्सेसफुली अपने फिंगरप्रिंट्स दे के आए। जी, मैं एक बार फिर मैं थोड़ा जिहा चाहूँगा कि चलते चलते 28 तरीक वाले ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं। वंस अगेन जो भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं वो काइंडली हमें इमीडिएटली अप्रोच करें, क्योंकि फैमिली स्पॉन्सरशिप क्लास में पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की जो एप्लीकेशन है वो 28 जनवरी को स्टार्ट होने वाली है, 28 जनवरी को। सो प्लीज़ हमें इन एडवांस अप्रोच करें ताकि आपकी एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से कंपाइल करके टाइमली अपलोड किया जाए। जी, बहुत मेहरबानी। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਅਪਲੋਡ, ਮਿਸ ਪ੍ਰਿੰਟਸ, ਨਾਨ ਰੀਡੇਬਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ICCRC ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਈਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, PR ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਾਈਟਲ ਹੋਊਗਾ ਸੀਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਿਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਨਮਸਕਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 8 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ YouTube 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਭਰਮਾ ਹੰਗੂਰਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।